management. Okay, thank you so much, Pranav. So now we'll go to Sakshi. Sakshi, are you there? Yes, sir. Okay, can you just introduce yourself? Yes, myself Sakshi Sudhakar Bhalerao. I'm from GH Raisoni Institute of Engineering and Technology, Pune, and I'm doing my engineering in information and technology. That's it. Okay, okay, thank you so much, Sakshi. Now we'll go to Rishikesh. Rishikesh, can you just introduce yourself? Yes. Hello everyone. I'm Rishikesh Pandey. I'm from GHS College of Engineering and Management, Pune, and I have completed. I'm in final year from computer engineering in BTech. Okay, thank you so much. Now, anyone from the same college? Okay. Now we'll go to Akash. Akash, can you just introduce yourself? Akash Singh. Okay. So my name is Akash Singh Thakur, and I'm from Deep Bread, Andaman and Nicobar Islands, and I've completed my BTech in Electronics and Communication Engineering in last year. Okay, thank you so much. I'll go to Saurabh. Saurabh, please introduce yourself. Myself, Saurabh Khanda. I am from Howrah. I have completed my Bachelor of Technology in Information Technology from College of Engineering and Management, Golaghat. Okay, thank you so much. Devajyoti. Hello everyone. Good morning. My name is Devadin Saha, and I have done engineering from College of Engineering Management, Golaghat in 2020, and I live in Jalapur, Kolkata. Thank you. Okay, okay, thank you so much. Now we'll go to Devashish. Hello everyone, my name is Devashish Vera and I come from Ghatshila and I did my graduation from Arka Jain University. Okay, thank you so much, Devashish. Rahul, are you there? Rahul, you can give your introduction without camera. Okay, Rahul, maybe you do have some network problem. Okay, you can give your introductions only without camera. Hello, hello. Yes, yes, Rahul. Hello everyone. I'm Rahul Chandrapal and I'm from Jamshedpur and I'm currently doing BCA from Arka Jain University. Okay, thank you so much, Rahul. Shraddha, are you there? Yes, sir. Can you introduce yourself and can you switch on your camera? Okay, sir, just a minute. Okay, now we'll go to, okay, then we'll go to Priyanka. Hello everyone, good afternoon. I'm Priyanka Mukherjee and I'm in my final semester. I'm doing BCA from Arka Jain University, Jamshedpur. Thank you so much. Now we'll go to Sarala. Good morning everyone, I'm Pantala Sarla from Arka Jain University. Currently I'm pursuing last semester of BCA. Thank you so much. Okay, Shraddha, can you just complete your introduction? Yes, sir. So I'm Shraddha Pandey. I'm from Jabalpur, which is situated in Madhya Pradesh. I'm currently pursuing my BTech from Jabalpur Engineering College. Thank you so much. Now we'll go to, okay, let me see, Shivam Bharadwaj. Can you introduce yourself? Yes, hello everyone. My name is Shivam Bharadwaj and I belong to Meerut. And I have done my graduation from CSE branch and I belong to Meerut. I have done my graduation in BTech in Meerut Institute of Engineering and Technology. Thank you. Thank you so much. Okay, now we'll go to Deccan Engineering College. Like, Juha, are you there? Please introduce yourself. Yes, sir. Hello everyone. My name is Zoha Naveen and I'm pursuing my engineering from Tripoli background and from Deccan College of Engineering and Technology from Hyderabad. Thank you so much. I will go to Nasima. Good afternoon, everyone. My name is Nasima Tabassum. I'm from Hyderabad. I'm currently pursuing computer science engineering
final year, final semester from Deccan College of Engineering and Technology. Thank you. Thank you so much, madam. And now we'll go to Utkarsh. Are you there? Yes, sir, I'm there. Actually, I'm Introduce. having some problem with my webcam, so I cannot turn on my camera right now. Okay, it's okay. Yes, sir. Please complete your introduction. Okay, sure, sir. Hi, everyone. I am Utkarsh Singh. I live in Jamshedpur and I am also studying in Jamshedpur, currently pursuing my BCA from Arka Jain University, which is also situated in Jamshedpur, Jharkhand. Thank you so much. We'll go to Shreya. Hello everyone, I'm Shreya Srivastava and I'm pursuing my BTech from Jabalpur Engineering College and my branch of Information Technology. Okay, thank you so much. We'll go to Runa. Runa, can you introduce yourself? Yes, sir. Sir, good morning. Yes, madam. You're audible, you can continue. Just tell your name and you're from which place. Okay, I think Runa is having network problem. We'll go to Ganga Bhavani. Are you there? Ganga Bhavani, can you introduce yourself? Ganga is also having network problem. Okay, so Rishi, I think now we have completed the basic introductions. And gradually, obviously, you will be going to friendly with them. आपको धीरे-धीरे सबका introductions पता चल जाएगा. आप भी धीरे-धीरे उनके साथ friendly हो जाइएगा. And the thing is like Rishi is very friendly guy. And if you want to learn anything, maybe Python, maybe whatever. Actually, I am a specialist programmer. Yeah. Yes. And I developed many application client side and server side both, and also I developed AI implementation in Python and also server side language, and I set up some testing tool that is JMeter and many more. Okay. So Rishi, so gradually आप उनको अपना जो आपने बनाए हुआ है till now you can share with them literally gradually. No. अच्छा, तो guys आप लोग थोड़ा ये बताइए कि आप लोगों का Python में कहाँ तक पता है? I forgot actually. The control statements. Control statement, okay. उसमें कौन सा control statement में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है अभी तक? Sir, if else statements, loops, ये सब हो गया था. Okay. Rishi, then we can start from there. And today, if you want to give some introductions on Python, whatever you want to share, you can share your screen. Now it's over to you, and please you take the control of the session. Okay. Okay. Hi everyone. Okay. At first, please tell me actually what is procedural language and what is OOPS? Anyone? प्रोसीड्यूरल और OOPS का क्या डिफरेंस है और क्यों लगता है, क्या मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OOPS में पड़ता है और प्रोसीड्यूरल में पड़ता है? Hello, sir. Yes. C is a procedural language, and other C++, Java, then Python are the object-oriented languages. And in procedural language, you go according to the algorithm and procedures. Like procedure is nothing but the set of codes and instructions. And in object-oriented programming, the program is based on objects and classes. Yes. And in object orientation, we can inherit programs. Inherit program means we first declare object and we run it. Yes. But in procedural language, step-by-step execution. Yeah. Actually, Python and JavaScript is a high-level hybrid language. Yeah. The Python and JavaScript
almost support procedural and OOPS concept. Yeah. Yes. Yes, sir. So this is a high level language. Please tell me why we use Python language. What purpose? Anyone? So basic reason is that Python is easy to code. Python is easy to code. And in business logic, what is business purpose? E-commerce, for e-commerce. For e-commerce, Banking. I think e-commerce is based for e-commerce. Actually, we are using Node for better performance and Shopify and anything else. Only for e-commerce. So it has big libraries. Like for everything, there is a library. Source software. No. Open source software, no, it is not correct because C also open and Java also open source and also anything. Actually, Python is a high computing language. Yeah. In business logic, when we need some big computation calculation algorithm, then we used the Python. Yes, and in suppose machine learning AI implementation and machine learning AI big data handling, we must use Python because Python is flexible for that. Yeah. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आप लोग मुझे ये बोलिए, यस, पाइथन में ठीक है, पाइथन और जावा और सी, ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट पे चौथा लैंग्वेज। तो तीनों में डिफरेंट क्या है और सिमिलरिटी क्या है? Yes. Hello. Compared to Java, Python I has have one question. I think hello. Yes, Deepali, would you like to say something? I can ask, sir. You want to Yes, ask sir. I have something? one question. Can I ask? Can you hold your microphone a bit close to Sir. your mouth? Which language to choose from between Python and Java for career? For career means I think this is not a proper answer. Actually, what type of business logic or what kind of app Actually, or product Rishi, she is asking. Rishi, she is asking a separate question. She wants to know that which will be the best programming language for career, Java or Python. It is too complicated. Actually, both are in market right now. So it depends. Yeah. Okay, continue, Rishi. Okay. So I think, please tell me what is the difference between and what is the similar between C, Python, Java? Anyone? Just one. Yeah. Sir, C++, Java, and Python. No C++, C, Java, and Python. Okay, C and Java compile होते हैं और Python is interpreted language. It does not need to compile before running the code in Python. It's the difference. और Java? Java compile होता है ना कोड Java में? देखिए, मैं बता रहा हूँ, सी, जावा और पाइथन जो है, सिमिलरिटी क्या है, इसका लॉजिक पूरा सेम है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, आप फॉर लूप हो गया, लूपिंग हो गया, कोई भी आप चीज उठा लो,
सब में सिमिलर है। कोई एक में आप एक लैंग्वेज सीखते हो तो बाकी लैंग्वेज का आपका नॉलेज आ जाएगा, सिर्फ आपको क्या जानना पड़ेगा, सिंटेक्स। सो ये हो गया सिमिलर। और डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन, ऐसे करके एग्जीक्यूट होगा। बट इन जावा हम लोग कोई भी चीज करने जाए, प्रिंट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो हम लोग को मस्ट क्लास डिफाइन करना पड़ता है। बट इन पाइथन इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग का दो ऑप्शन यहाँ पर है, हम लोग डायरेक्टली इसको मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं प्रोसीड्यूर की तरह, और क्या कर सकते हैं, जावा की तरह क्लास बना के डिफाइन करके उसको कॉल करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस और सिमिलरिटी। तो मेन बेसिकली पाइथन क्या होता है, पाइथन होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो क्या होता है, हाई लेवल कंप्यूटेशन जो काम होता है, जैसे कि बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, यूट्यूब का डेटा, और फिर फेसबुक का डेटा हम लोग को रियल टाइम एक्सेस करना है, तो इसी पोजीशन में जो है पाइथन यूज होता है, राइट। ये एकदम बिजनेस मॉडल है, बिजनेस लॉजिक है, जो इंडस्ट्री में ये कैलकुलेशन लगता है, ये सब कैलकुलेशन वो लोग प्रेफर करते हैं पाइथन को। तो पाइथन बहुत तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया डेटा साइंस, एक हो गया वेब फ्रेमवर्क, और दूसरा हो गया ये इम्प्लीमेंटेशन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप सुने होंगे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है कि कोई भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम लोग स्क्रिप्ट से भी चला सकते हैं पाइथन को, फ्रेमवर्क से भी चला सकते हैं, मतलब हम लोग इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथन। पाइथन का जो मेन फंडा है वो है कि पाइथन में आपका वेरिएबल और डेटा टाइप, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब वेरिएबल ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम लैंग्वेज में सेम है। और वेरिएबल क्या होता है, कोई एक बताओ, प्लीज टेल मी। हेलो। कंटेनर फॉर स्टोरेज। या स्टोरेज। तो क्या होता है कि हम लोग एक स्टोर डिफाइन करते हैं, स्टोरेज, जिसको मतलब हम लोग कोई भी कीवर्ड यूज करके उसको डिफाइन कर दिए। तो उसको डिफाइन करने के बाद वो हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक बार डिफाइन कर दिए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो हमें ये क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल चीज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पाइथन हाई लेवल कंप्यूटेशन लैंग्वेज बोल के, ये क्या होता है, ऑलरेडी इसको पता होता है कि ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। हम लोग को डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का दरकार नहीं पड़ता। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करने से वो डेटा टाइप को मतलब डिफाइन नहीं कर पाएगा। ओके। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं मतलब टाइप क्या टाइप है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे कि इंट हो गया, हम लोग फ्लोट, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस किसी के पास भी आपका एनाकोंडा नहीं है और आपका कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, चल नहीं आता, तो उसमें क्या करेंगे, ऑनलाइन में आप जुपिटर नोटबुक ऐसे खोल सकते हो। तो उससे आपको क्या मिलेगा कि आपको आपका प्रोसेसर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप ब्राउजर में सब काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया टाइप, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो भी एलिमेंट को रखेंगे उसमें क्या होगा, ये पूरा टाइप हम लोग को बता देगा। तो बहुत सारा टाइप है, डेटा टाइप है, और उसमें आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये सब पूरा है। तो इसको जो है
आप लोग को देखना पड़ेगा। ओके, बूलियन हो गया। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये सब आई थिंक आप लोग जानते हो, आप बोले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट तक आप लोग किए हो, ठीक है। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओके, हेलो, Yes, sir. Okay sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके। तो बेसिकली हम लोग डेटा टाइप जानते हैं, वेरिएबल जानते हैं, और कंट्रोल स्टेटमेंट भी आप लोग किए हो, ठीक है। सेट, टपल, ये सब भी आई थिंक आप लोग किए हो। लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में कॉन्कैट मतलब दो लिस्ट को एक साथ कैसे कॉन्कैट कर सकते हो, ये भी आई थिंक आप लोग किए हो। तो नॉर्मली मैं फिर से भी दिखा देता हूँ। इसमें सबसे अच्छा चीज़ है सीखने के लिए, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए लिस्ट 1 लिया, यहाँ पर आपका हो गया A, B, तो ये 2 लिया, तो इसको मान लीजिए हम लोग कॉन्कैट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा मेथड मिल जाएगा, मतलब फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इनबिल्ट जो नेटिव फंक्शन है, तो इसमें आप देख सकते हो टैब यूज करने से आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो आप एक एक करके लिस्ट का, सेट का, टपल का क्या क्या फंक्शन है, उसका क्या मतलब किससे यूज कर सकते, यूजेबल होता है, ये सब आप लोग खुद से घर में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉन्कैट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है काम कर सकते हो। तो ये हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, नॉर्मली जो है इंडेक्सिंग हो गया। फिर मान लीजिए ये लिया, देखिए 0 to 5, 0 इंडेक्सिंग तो आपको पता ही होगा। लिस्ट 1 में क्या हुआ, लिस्ट 2 का जो है डेटा एक्सटेंड किया, मतलब क्या है, ज्वाइन किया, मतलब मर्ज हुआ। तो ये एक बड़ा लिस्ट हुआ, उसमें से क्या हुआ 0 to 5, मतलब ये इंडेक्स पकड़ा, ये 0 1 2 3 4 5, तो इसको जो है रिजेक्ट कर दिया, इतना तक लिया। ओके, हेलो, यस सर। हाँ, तो ये सब आई थिंक बेसिक्स आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा एडवांस लेवल में जाने के लिए, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन में खोल लेंगे, यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट का नाम ऐसे प्रेस करके टैब बटन प्रेस करेंगे, डॉट करके टैब प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शंस आ जाएगा। Okay, just a second, Rishi. हाँ, हेलो। Okay, continue, Rishi. ओके, तो ये आपका हो गया, ये आप कर सकते हैं टैब से। तो यहाँ पर पूरा चीज को जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लिस्ट में लिया, ये रिवर्स, तो ये क्या हो गया, पूरा चीज को रिवर्स कर दिया। तो इसको एक्चुअली टेक्निकल टर्म में बोलता है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब हम लोग एलिमेंट कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क में हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज हम लोग का एरे में आता है, तो हम लोग को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर करना है, तब आप लोग ये फंक्शंस को यूज करके काम करते हैं। तो ये सब इनबिल्ट होता है नेटिव। ओके, तो अभी ये चीज हो गया आप लोग को। अभी फॉर लूप का भी मैं एक दिखा देता हूँ छोटा एग्जांपल। फॉर लूप क्या होता है, एलिमेंट को एक एक करके पास कराता है। तो पाइथन में फॉर लूप सिंपल ऐसे करके डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो
ये डिक्लेयर करने से देखिए एलिमेंट 1 2 3 ऐसे करके आ गया। तो अभी मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू i प्लस हेलो यहाँ पर x, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एट्रीब्यूट हम लोग के पास आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का कोई भी एट्रीब्यूट के साथ, मान लीजिए मेरा एक आईडी आ रहा है, ठीक है, मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे करके आईडी आ रहा है जैसे कि 001 और सॉरी काम करना पड़ेगा, लिस्ट 1 इक्वल टू 001 002 और 003 004। तो काम किए हम लोग, यहाँ पर लिखिए CSS नहीं तो TCS कर दिए, इसको स्लैश कर दिए, कॉन्कैट कर दिए, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर हो गया तो इंटीजर कॉन्कैट करेगा, स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग कॉन्कैट करेगा, ठीक है। तो ये कर दिया, तो आया हेलो। यस सर। हाँ, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज हुआ कि 3 to 1, क्योंकि हम लोग इसको जो है लोडिंग नहीं किए। अभी लोडिंग किया, अभी देखिए आया, तो क्योंकि वो स्टोर करके बैठा हुआ था पुराना वेरिएबल का डेटा। तो ऐसे करके मान लीजिए कोई भी डेटा हम लोग का एंट्री होता है तो उससे हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ को कॉन्कैट कर सकते हैं। कॉन्कैट करके हम लोग क्या करते हैं, टीवी में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये यूनिक आईडी होता है। आई थिंक डीबी का डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा, प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्सिंग, ग्रुपिंग, जॉइनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिक नंबर इसको पकड़ लेते हैं, यूनिक आईडी घुसाते हैं। क्यों यूनिक आईडी घुसाते हैं, क्योंकि यही बाद में जाके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इससे, कि मान लीजिए हम लोग का TCS का 002 का एम्प्लॉय आईडी का कितना सैलरी फ्लो हुआ है, कितना कम हुआ है, ये हम लोग रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, ये यूनिक आईडी से। तो ये जो हम लोग एलिमेंट देख रहे हैं, ये रियल टाइम यूज होने का कोड है, ठीक है। तो ये आपका फॉर लूप हो गया। तो फॉर लूप का मैं एकदम आपको रियल टाइम में दिखा दिया, ये ऐसे करके हम लोग का यूज होता है। तो इसके बाद जो होता है, आई थिंक फॉर लूप हो गया। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अभी फॉर लूप का अभी अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन आया, वो कंट्रोल में वो क्या हुआ, वो सेटिस्फाई हो के वो प्रिंट किया, और फॉर लूप में कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या किया, घूम गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पर TCS डाल दिया, यहाँ पर TCS डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर हेलो डाल दिया, ओके। तो हम लोग क्या किया, फॉर लूप घुमाए इसमें, आई इन लिस्ट 1। इसके बाद क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, सर इफ आई इक्वल टू TCS हुआ तो क्या होगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट में क्या होगा, नहीं तो एल्स में क्या करेगा, प्रिंट नॉट, ओके। और पाइथन बहुत केस सेंसिटिव है। तो ये हो गया, देखिए इसमें क्या हुआ कि ये TCS हेलो। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हम लोग TCS को सेग्रीगेट करके निकाल दिए कि कितना हम लोग का TCS है, कितना नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाद में एक डेटा स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन करके
हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग PCS का डेटा लिए, डेटा लेने के बाद हम लोग क्या किए, आई को कॉल कराए, ठीक है। अभी PCS डेटा क्या किए, उसमें स्टोर किए, तो उसमें यहाँ पर प्रिंट करके PCS डेटा को हम लोग लिखा, तो आया हम लोग का PCS डेटा। ओके, हेलो, यस सर। तो हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, ये एलिमेंट से इसको बोलते हैं, एक्चुअली लिस्ट बोलते हैं पाइथन में, लेकिन इसको एरे भी बोलते हैं। तो एरे के अंदर से हम लोग क्या किए, हम लोग किसी चीज को फिल्टर करके निकाले और एक वेरिएबल में स्टोर किए, वो उसको प्रिंट किया। तो ये रियल टाइम क्या एग्जांपल है कि मान लीजिए हम लोग को हम लोग का एक बड़ा टेबल है और बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हो गया IBM का है, PCS का है, इसका है, उसका है, सबका है। तो उसमें से मुझे PCS का एम्प्लॉय को जो है फिल्टर करके निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PCS का एम्प्लॉय को निकालने के लिए हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये हम लोग कस्टम फिल्टर ऐसे भी मेथड होता है, फंक्शन होता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसे करके भी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का, आप ऐसे भी फॉर लूप किए हो, तो इसको डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोग को। तो इसके बाद जो आता है आप लोग को फॉर लूप हो गया, राइट। तो इसके बाद आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि लीफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, तो प्रैक्टिकली इसको बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे होता है, मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हम लोग के पास, ठीक है, डेली वाइज जो है एम्प्लॉय घुस रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो ये क्या होता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हम लोग यूज करते हैं जहाँ तक, मतलब लीफो डेटा स्ट्रक्चर का जो मतलब हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लीफो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लीफो, क्यों? बिकॉज लीफो करने से क्या होता है कि लास्ट एलिमेंट जो आया उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि आज एंट्री हुआ, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो क्या होता है कि आज का जो डेटा होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो आप देखिएगा फेसबुक में आप उस कॉल मतलब जब करते हो सब, तो क्या होता है आपका पुराना जो डेटा है वो क्या करता है, एकदम नीचे रखता है, और नया वाला जो करंट डेटा है आपका वो ऊपर रखता है। तो ये किससे आता है, एरे ऑब्जेक्ट से आता है। तो मैं थोड़ा आपको आप लोग को डेटा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे ऑब्जेक्ट ऐसा टाइप का होता है जैसे, हाँ, ऐसा टाइप का होता है एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर होता है नेम, ये एक एरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। ये एक एरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए हम लोग को रिवर्स करना होगा, नहीं तो देखिए ये जो है ये क्या होता है, इस फॉर्म में आता है डेटा, राइट। तो मैं एक सिंपल आपको दिखाता हूँ जो हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं कि कैसे एरे ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम में रख के और डेटा फ्रेम से हम लोग मतलब जो है CSV में कन्वर्ट करते हैं, JSON में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग बनाए df python इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये सॉरी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है पहले, post panda as pd।
उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता है, df पाइथन इक्वल टू pg डॉट, देखिए यहाँ पर डेटा फ्रेम कहा जाएगा, डेटा फ्रेम, और इसको क्या किए, पाइथन एरे को डेटा फ्रेम में बनाया, उसको क्या किए, df पाइथन को डेटा फ्रेम में ऐसे हम लोग लेके आ गए। तो हम लोग क्या किए, df पाइथन डॉट, और एक काम करते हैं, टू CSV में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर CSV में कन्वर्ट किया, तो CSV में कन्वर्ट हो गया। इसको एक लोकेशन दे देते हैं, नाम देते हैं न्यू CSV डॉट CSV एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पर हम लोग फाइल में देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा CSV जो हुआ है, ठीक है, नेम और ईयर हिसाब से। तो ऐसे करके जो है डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम में कॉल करा के, उससे क्या होता है, हम लोग CSV जेसन जिसमें हम लोग को चाहिए, SQL में हम लोग को स्टोर करना है, सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी CSV में हुआ, इसको हम लोग मान लीजिए एक्सेल में करते हैं, तो एक्सेल में भी हो सकता है। तो एक्सेल में करते हैं तो सॉरी, यहाँ पर एक्सेल WT नो मॉड्यूल नेम, इसमें मॉड्यूल आई थिंक नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेल तो छोड़ देते हैं, अभी बाद में दिखाएंगे एक्सेल। बाकी यहाँ पर सब एट्रीब्यूट हैं, टू करके आप चेक करते हो तो इसमें मिलेगा आपको। आप HTML में भी कर सकते हो, मतलब हर एक चीज में कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, और एक और जेसन में कर सकते हो, और बाकी सब कुछ में ही कर सकते हो। तो ऐसे करके आप CSV में कन्वर्ट कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग CSV में काम करते हैं। तो ये हो गया आप लोग का। अभी मेन बात है कि एक्चुअली सेट टपल ये सब जो चीज़ है, ये एक्चुअली काम कहाँ करता है, ये एक्चुअली काम करता है डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस जो डोमेन है उसमें। मतलब जहाँ पर डेटा आके डेटा को आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, और डेटा को फिल्टर करना पड़ता है, तब जाके आपको सेट टपल ये सब यूज करना पड़ता है। बट रियल टाइम आपका कोई भी एप्लीकेशन लेयर में काम करने के लिए ये सब उतना मैंडेटरी नहीं। फिर भी कोई भी डेटा को कैसे हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं, ये मैं अब बता दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, मान लीजिए ये मैं लिस्ट बना दिया, लिस्ट न्यू करके मैं नाम दिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। अभी आप लिस्ट न्यू को देख सकते हो, लिस्ट न्यू क्या है, लाइक लिस्ट है, ठीक है। इसका टाइप आप चेक करने से आपको मालूम चलेगा, यहाँ पर टाइप में क्या है, लिस्ट है। तो हम लोग मान लीजिए लिस्ट को सेट करना, हम लोग को मतलब हम लोग सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, सेट न्यू। तो सेट करके एक आप टैप करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि सेट करके एक जो है मेथड और फंक्शन है यहाँ पर, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिस्ट वन को सेट कर सकते हैं। तो आप सेट न्यू देखेंगे तो ये हो गया सेट। तो अब टाइप देखने से आपको पता चलेगा सेट। तो ऐसे करके आप इसको टपल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब इसको की वैल्यू पेयर में नहीं लगा सकते हो, मतलब डिक्शनरी आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप सेट कर पाएंगे और टपल कर पाएंगे। जो आपका सिंगल एलिमेंट है, ये सब जो है इसको बोला जाता है सिंगल एलिमेंट। ये मल्टीपल एलिमेंट है, मतलब क्या, की वैल्यू पेयर में, तो हम लोग की पकड़ने से इसको वैल्यू जो है एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप मान लीजिए टपल में हम लोग क्या किए, यहाँ पर
टपल कॉल करा है, तो लिस्ट 1 जो है इसको पहले तो हम लोग फिर से लोड कर लिए। उसके बाद आप टपल देखिए यहाँ पर हो गया, आ गया, ठीक है। तो आई थिंक लिस्ट 1 में क्या, ओ सॉरी यहाँ पर लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट नहीं, ठीक है। ये तो हो गया टपल। तो इसमें हम लोग टाइप भी आप लोग चेक कर सकते हैं टाइप क्या होता है। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्सन करेंगे, कोई भी मतलब चीज़ को हम लोग को जैसे टाइप का लगेगा वैसे टाइप का हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जो है नेटिव प्लान नेटिव होता है सब पैकेज, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, नेटिव को उठा के काम कर सकते हैं। और नॉर्मली जो होता है कि इसमें क्या बेनिफिट है, कोड लेंथ कम होता है और टाइम कम लगता है, राइट। तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ है, अभी आप लोग का मेन बात है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें देखना पड़ेगा। अभी मान लीजिए ये डेटा, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का डेटा आया, तो इसमें इंडेक्सिंग करेंगे। मान लीजिए इंडेक्सिंग हम लोग को करना है, तो इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग ये 0 एलिमेंट को पकड़ेंगे। मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग का लास्ट एक कंडीशन आया जहां पर हम लोग को क्या है, बिजनेस लॉजिक में बोला गया कि लास्ट जिसका एंट्री होगा उसको हम लोग 50,000 रुपीज देंगे, नहीं तो फर्स्ट जो एंट्री होगा उसको हम लोग 50,000 रुपीज देंगे, राइट। दिस इज बिजनेस लॉजिक। ये लॉटरी का सिस्टम हो गया, नहीं तो कुछ मनी मार्केटिंग का सिस्टम हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, होल डेटा जो निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, तो वो पर्टिकुलर डेटा हम लोग के पास आ जाएगा। तो उस डेटा को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली रियल फैक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 इंडेक्सिंग में चेक करने से हम लोग को पता चलेगा नेम क्या है, उसका ईयर क्या है। और यहाँ पर -1 करने से क्या होगा, हम लोग का पीछे वाला जो चीज है उसको हम लोग चेक कर पाएंगे। ये इंडेक्सिंग का जो मेन फंडा है कि स्टार्टिंग होता है 0 से और एंडिंग से स्टार्टिंग होता है तो -1 से, ठीक है। हेलो, यस सर। आप लोग समझ में आया आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये सब एलिमेंट को जो है पकड़ के आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल। और मैं बिजनेस में आपको बता दिया कि ऐसे ही होता है काम इंडस्ट्री में, कि कोई भी चीज को हम लोग को पहले और लास्ट में मतलब करना है। तो ऐसे अभी ये कंडीशन आया जहाँ पर मान लीजिए ऐसा हुआ कि जिसका ज्यादा है, ठीक है, जिसका ज्यादा है उसको मतलब ओके, प्लीज गिव मी 5 मिनट, ओके, जस्ट 5 मिनट। Yes, hello. Oh, sorry. Hello. यस सर। Yeah, okay. यस सर। तो ये एक्चुअली हम लोग का वो हो गया, ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। तो इसमें मान लीजिए हम लोग को चेक करना है कि हम लोग का टोटल जो है कितना कैंडिडेट जो है ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, ठीक है। मतलब हम लोग का एक मान लीजिए बम्पर ऑफर, लॉटरी का बम्पर ऑफर चल रहा था। बिजनेस लॉजिक बोलता है कि लॉटरी में हम लोग का
जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से एंड तक हम लोग का कितना परसेंट लॉटरी खरीदा, मतलब टोटल काउंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब इजी मतलब हम लोग का वे है, तो ये एक्चुअली यूज होता है। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पर मेरा कितना लेंथ ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग का काउंटिंग में मतलब कितना लॉटरी जो है सेल हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम लोग का एक लॉटरी का प्राइस था 50, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये लॉटरी प्राइस देते हैं और इसमें क्या करते हैं 2 इंटू हम लोग का जो 2 इंटू 50। तो हम लोग अब चेक करते हैं लॉटरी प्राइस, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को इसका टोटल कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल प्राइस कितना सेल हुआ है हम लोग का लॉटरी का, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग के एनालिसिस पोर्शन में है, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस भी आप दिखा सकते हो, ग्राफिकली चार्ट शो करा के। यह हो गया। अभी मेन बात है कि मान लीजिए मेरा इसको हम लोग को एरे को रीयूज करना है, ठीक है। मतलब ये एरे है, एरे में हम लोग क्या किए ऑलरेडी, इसमें हम लोग का जो है ऑलरेडी डेटा है, लेकिन हम लोग को डेटा को क्लीन करके फिर से नया डेटा मतलब उसमें एंटर करना है। मतलब कैसा हो गया कि कोई आया, ठीक है, अपना मान लीजिए उसका जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा वो मतलब रियल टाइम क्या होता है कि लोकल स्टोरेज बोल के एक चीज होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड में। ये लोग अब आप लोग बाद में इसको जो है समझेंगे। तो लोकल स्टोरेज यूज होता है, सेशन स्टोरेज भी यूज होता है, मतलब हर एक चीज में। तो क्या होता है, लोकल स्टोरेज में हम लोग एरे में उसका डेटा उठाया, ठीक है। मतलब मान लीजिए वो बुक ऑर्डर करेगा, तो मल्टीपल बुक को मतलब ऐड करके कार्ट में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्ट में वैल्यू है इसका, राइट। और वो चाहता है कि मैं अभी मैंने बुक नहीं खरीदूंगा, अभी क्या होगा मैं क्लियर मतलब क्लीन कर दूं। तो वो क्या करेगा, ये एरे को जो है हम लोग का क्या है, बिजनेस लॉजिक में क्या करना पड़ता है, एरे को क्लीन करना पड़ता है। तो एरे क्लीन हो जाएगा, मतलब हम लोग का उसको जो कस्टमर है वो उसका व्यू में, उसका एंड में वो जो है कार्ट में कोई भी बुक नहीं देख पाएगा। तो इससे हम लोग कैसे नॉर्मली कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन एरे जो है हम लोग का, ठीक है, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, मतलब चेक करने से क्या होगा, पाइथन एरे का वैल्यू 0 हो गया। और इसको क्या कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। आई थिंक नल नहीं, नल यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको 0 कर सकते हैं, 0 कर देते हैं। तो इसका एरे का जो है वैल्यू कितना हुआ, 0 हो गया। तो वो क्या देखा है, उसको मिलेगा मतलब एंड पॉइंट में कि उसको कोई डेटा शो नहीं होगा, राइट। तो ये छोटा छोटा चीज को पहले कैप्चर करना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। ये मैं जो बात आपको बता रहा हूँ सब रियल टाइम सिनेरियो में हम लोग काम करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे करके आप लोग का एप्लीकेशन डेवलप होता है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम डिजाइन होता है, राइट। तो ये हो गया। अभी मान लीजिए हम लोग को क्या कंडीशन है, इसमें से हम लोग को ये मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे है, एरे मगर इस एरे एलिमेंट को मतलब हम लोग को तोड़ेंगे, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट जो है उसको निकालेंगे बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से फॉर लूप घुमाना पड़ता है। तो फॉर लूप हम लोग घुमाएंगे इसमें। तो फॉर लूप घुमाने से हम लोग क्या होगा कि एरे का जो एलिमेंट है वो हम लोग के पास निकल के आएगा। आप चेक करते हो, सॉरी ये एक्चुअली आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नेम पीसीएस ईयर 2020। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया हम लोग का, और इसमें एक चीज हम लोग घुसाते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग डालते हैं इसमें कि आई इक्वल टू आई डॉट
आई डॉट, हाँ आई डॉट आपका मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, आई इक्वल टू कुछ एक डालते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट डाल देते हैं। हाँ डिपार्टमेंट हो गया, वो हो गया आपका डेटा साइंस हो गया। तो यहाँ पर इनवैलिड, सॉरी, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी हम लोग का डेटा आता है अरे ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट को जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मेरा डेटा साइंस अभी एक मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, राइट, ये 0, और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है ये 1 है, ये 1 है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर फॉर लूप घुमाए इसको, ठीक है। फॉर लूप में हम लोग इफ कंडीशन डाल दिए, आई हो गया डॉट, यहाँ पर डिपार्ट जो है डिपार्ट आईडी, ठीक है, डिपार्ट आईडी इक्वल टू 0 हुआ, तो इसमें जो जाएगा वो हो गया आई, सॉरी ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, आई हो गया, नहीं तो एल्स इफ में डालेंगे आई, एल्स इफ यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग एल्स डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई बात नहीं। इक्वल टू 1 हुआ, तो इसमें हम लोग डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया इफ आई, ठीक है, इसको एल्स में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेम, ईयर और डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट डेवलपर, ठीक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बता रहा हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जो है उसको 0 मिला, ठीक है। तो ये क्या, ये फॉर लूप मतलब ऐसे नहीं घूमता है, फॉर लूप घूमेगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, एरे में स्टोर करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, ये एक बार घूमेगा एक बार दिखाएगा, 2 बार घूमेगा 2 बार दिखाएगा, लेकिन एरे में स्टोर करने से क्या होगा, ये जब तक घूमते जाएगा उसमें कंटेनर में स्टोर होते जाएगा। तो ये सब आता है, ये और भी आपका जो है एडवांस लेवल में मैं दिखाऊंगा, और ऐसे करके होता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया ये आपका हो गया एरे ऑब्जेक्ट। अभी जेसन, ठीक है, जेसन क्या होता है, जेसन होता है एक्चुअली एक फॉर्मेट होता है। तो जेसन में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलता है जेसन के, जेसन में मुझे सॉरी 5 मिनट मुझे थोड़ा दीजिए, कॉल आ रहा है, हाँ।
सॉरी, हेलो। ओके, तो ये हो गया। हेलो। यस सर। तो सबको समझ Yes, में sir. आया जो मैं मतलब दिखाया पूरा एकदम इसको? हेलो। सो क्या करते हैं? Hello, is हेलो। am I audible? Okay. Okay, guys, you have to respond once Rishi is asking something. Are you guys there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please respond now. Yes, sir. He's asking for response. सर। वही मैं पूछ रहा था, आप लोग का समझ में आ रहा है कुछ इसमें? Yes. यस सर। Yes, sir. तो इसको जो है डिटेल में आप लोग को देखना, चेक करना पड़ेगा डिटेल में कर करके। ओके, तो कौन सा सिनेरियो में क्या क्या यूज होता है, मैं भी वो बता दिया। तो जेसन में क्या होता है नेक्स्ट लेवल में बता रहा हूँ। जेसन एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, दो जो टेक्नोलॉजी है उसको आपस में इंटरेक्ट करता है। मतलब क्या होता है बेसिकली, बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। बैकएंड होता है कि सर्वर साइड होता है, राइट, और फ्रंट एंड होता है क्लाइंट साइड। तो मैं एक ग्राफिकल इंटरफेस दिखाने से मैं दिखाता हूँ आप लोग को, अपने एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए हम लोग का ये क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है, राइट। तो कैसे मालूम चलेगा क्या है नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ उसमें। क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड है, और इसमें ये हो गया सर्वर साइड। ओ सॉरी, ये वाला क्लाइंट साइड। ये वाला क्लाइंट साइड है, ये वाला सर्वर साइड है। सर्वर साइड अभी क्या होता है, डेटा अभी एपीआई क्या होता है एकदम ट्रोली में समझाऊं तो, ये क्लाइंट साइड से डेटा सर्वर साइड में जाता है, राइट। क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है यूआई इंटरफेस, ठीक है। यूआई इंटरफेस में क्या क्या आता है, एंगुलर आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, HTML CSS ये सब भी आता है। HTML जो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब रिक्वेस्ट सेंड करता है। मतलब कैसे कि मोबाइल ऐप में आयोनिक हो गया, ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड मतलब इंटरेक्ट करता है ब्राउजर के साथ, ठीक है, डायरेक्टली ब्राउजर। क्लाइंट साइड जब रिक्वेस्ट सेंड करता है, पहुंचता क्या है सर्वर साइड, क्लाइंट क्या करता है सेंड करता है सर्वर। तो ये जो प्रोसीड्यूर चलता है, ये प्रोसेस जो चलता है, ये इसको बोला जाता है डेटा हैंडलिंग। मतलब एक टेक्नोलॉजी से एक टेक्नोलॉजी में जाता है बिजनेस लॉजिक, जो जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इसको हैंडल करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। तो कैसे टाइप का हो गया, ये क्या रिक्वेस्ट, ये क्या रिस्पॉन्स, राइट। तो रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक है, जैसे कि मैं सेंड किया कि मान लीजिए लिस्ट, लिस्ट सेंड किया यहाँ पर। यहाँ पर हमें लिस्ट सेंड किया, जहाँ पर क्या होगा कि मुझे यहाँ पर चाहिए कि मेरा परचेस लिस्ट, ठीक है, मैं जो जो आइटम परचेस किया उसका जो है लिस्ट चाहिए, परचेस लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट साइड से मेरे पास इसको बोलते हैं इवेंट ट्रिगर, ठीक है। क्या करते हैं, इवेंट को मैं ट्रिगर करता हूँ। मेरा एक बटन है जिसका बटन में है लिखा कि परचेस लिस्ट बोल के,
मैं उसको ट्रिगर किया, मतलब उसको प्रेस किया जब, तो उसमें से एक सिग्नल पास हुआ। सिग्नल मतलब क्या, एक इवेंट ट्रिगर हुआ। जो इवेंट क्या करता है, एपीआई को कॉल करता है। एपीआई मतलब क्या होता है, एक लिंक होता है, राइट, हम लोग बनाते हैं। तो वो एपीआई कॉल करता है। एपीआई क्या करता है, डायरेक्टली उसको ले जाके सर्वर क्या करता है, सर्वर में देता है। सर्वर मतलब बैकएंड। बैकएंड मतलब क्या, बैकएंड मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्नोलॉजी है, नोड है, नोड जेएस और है, पाइथन का है, जैंगो, जावा का है, स्प्रिंग बोट, ये सब है। पीएचपी है, फिर रूबी रेल्स है। ये बोलता है सर्वर साइड लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज मतलब क्या, उसमें सर्वर में जो बिजनेस लॉजिक आता है, सर्वर में जो सर्वर कंट्रोल करता है, जो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जैसे कि ये हो गया हम लोग का डीबी, राइट। तो जो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ये इसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग का बैकएंड का कोड रहता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मैं परचेस लिस्ट का जो है सेंड किया रिक्वेस्ट सर्वर को। सर्वर को वहाँ पर चेक किया, जो रिक्वेस्ट क्या आया है वो चेक किया कि वो जो है परचेस लिस्ट का जो है एपीआई कॉल कर रहा है। तो वो क्या करेगा, सर्वर और परचेस लिस्ट का एपीआई को चेक करेगा कि एपीआई में कौन सा डेटाबेस का टेबल को एक्सेस कर रहा है और कौन सा क्वेरी है। उस हिसाब से वो क्या करेगा, सर्वर उसको रिक्वेस्ट भेजेगा डीबी को। डीबी कोई भी हो सकता है, मोंगो, माइस्क्यूएल, तो उसके बाद आपका होता है ओराकल डीबी, कोई भी। तो ये क्या कर सकता है, डीबी चेक करेगा कि सर्वर साइड से क्या रिक्वेस्ट आया। मान लीजिए रिक्वेस्ट आया कि मुझे परचेस लिस्ट चाहिए 1 से 10 तक, मतलब पेजिग्नेशन करके, इसको पेजिग्नेशन बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन मान लीजिए परचेस लिस्ट हम लोग को पूरा चाहिए। तो डेटाबेस क्या करेगा, वो चेक करेगा सर्वर साइड के रिक्वेस्ट, डेटाबेस चेक करके डेटाबेस से वो सर्वर क्या करेगा, मतलब बैकएंड फेच करके निकाल के लेके आएगा अपने बैकएंड में। उसके बाद बैकएंड क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, परचेस लिस्ट भेजेगा। तो परचेस लिस्ट जब आ गया क्लाइंट साइड के साथ पास, तो हम लोग का क्या होगा, क्लाइंट जो है चेक करेगा कि आया कि नहीं। वो देखेगा कि ब्लैंक नहीं है, वो डेटा ऑलरेडी है उसमें। वो क्लाइंट साइड क्या करेगा, यूजर को मतलब डिस्प्ले कर देगा। ये जो होल प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड सर्वर साइड इंटरेक्शन विद एपीआई। तो आप रियल टाइम सिनेरियो में चेक करते हो, तो ये मान लीजिए ये गूगल, ठीक है, राइट। तो ये गूगल जो है, ये है यूजर इंटरफेस है, ये वाला सो बोलते हैं यूआई। इसको ये है क्लाइंट साइड, राइट। इसमें हम लोग कोई भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए इसमें ये सब होगा कि इसमें हम लोग कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि यस लिखे। जब हम लोग एंटर करेंगे तो क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होगा। इवेंट ट्रिगर के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, वो मेरा रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स क्या आया, ये सब डेटा मेरा रिस्पॉन्स आया। हाँ, ये सर्वर में होता है, इतना स्पीड होता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्योंकि ये मिली सेकेंड में होता है पूरा। तो ऐसे करके मैं कुछ दूसरा लिख दूं, जैसे कि ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो ये रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आ गया। तो ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, इवेंट ट्रिगर। जो हम लोग क्लाइंट साइड से जो भेजते हैं सर्वर साइड को, उसमें क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को एक इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इवेंट डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने से क्या होगा, इवेंट डायरेक्ट ले जाके सर्वर साइड में जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सर्वर साइड क्या करेगा, उसके हिसाब से जो है डीबी को एक्सेस करेगा और डीबी से क्वेरी के ऊपर डीबी से टेबल से डेटा एक्सेस करके दें। तो ये होल प्रोसेस को बोला जाता है आपका वेब डेवलपमेंट, राइट, वेब ऐप। ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes, या
हेलो हेलो। Yes, sir. सॉरी। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को पूरा एकदम वेब डेवलपमेंट बोल सकते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर में इंटरेक्शन जो होता है सब इससे ही होता है। मतलब पूरा डिजिटल जो हम लोग का आप देखते हो तरह से। अभी क्या होता है कि मतलब UI आए सर AI, उसके बाद जो एडवांस लेवल में सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा डिवाइस है राइट, ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा दूसरा कुछ डिवाइस है। मान लीजिए मेरे पास रिमोट है। रिमोट मतलब कैसा हो गया, मान लीजिए मान लीजिए मेरा ये कार है, ठीक है, ये वाला कार है, ये वाला रिमोट है। तो मैं रिमोट को जब इवेंट ट्रिगर करता हूँ, कार का क्यों है, एक एक मेथड मेरा है, मतलब फंक्शन से बना हुआ, तो वो चेक करता है कि ये एक्स प्रेस किया तो एक्स में क्या चलेगा, तो वो क्या करता है, चला देता है। तो ये जस्ट लाइक मतलब स्विचिंग ऑपरेशन। मतलब आप अपना घर में देखेंगे, वो आप एक स्विच प्रेस करते हो, स्विच के हिसाब से आपका फैन चलता है, लाइट चलता है। तो सिमिलर पूरा एक ये भी जो है सिमिलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वर साइड क्लाइंट साइड इंटरेक्शन विद जेसन, ठीक है। तो जेसन को जो है डिक्लेयर कैसे करना पड़ता है, ऐसे करके करना पड़ता है। ये सब जो होता है इनिटी प्लगइन होता है राइट। सो पीप इंस्टॉल करके जो हम लोग करते हैं, पीप मतलब पाइथन पैकेज मैनेजर, तो उसमें क्या होता है, वो सब होता है थर्ड पार्टी पैकेज भी क्या होता है, मॉड्यूल भी क्या होता है, ये भी हम बताऊंगा एडवांस लेवल में। तो जेसन में क्या होता है, ये हम लोग को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोचिए इसको मैं हम लोग जेसन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जेसन डेटा लेंगे। ऑलरेडी जेसन में होगा तो जेसन कन्वर्ट नहीं करेगा, और जेसन में नहीं होगा तो कन्वर्ट करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेसन इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पर इस पाइथन में रन नहीं करा है। पाइथन एरे इज नॉट डिफाइंड, पाइथन एरे को रन करना पड़ेगा, ये रिस्टार्ट हुआ था करना। लिस्टिंग पाइथन बाइट एरे नॉट लिस्ट। ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं। जेसन यहाँ पर डम करते हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि ये आपका ऑलरेडी जेसन टाइप का ही डेटा है, ठीक है। ये मैं जेसन ही बनाया था एक्चुअली। तो उस हिसाब से क्या हुआ, वो मुझे डम किया, मतलब जेसन को डम किया, लेकिन जेसन को मतलब लोड नहीं किया। तो जेसन कन्वर्ट करने का वही है, जेसन लोड करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको रियली, कि हम मान लीजिए थर्ड पार्टी एपीआई कैसे कॉल करके हम लोग फिच करा सकते हैं। मान लीजिए थर्ड पार्टी एपीआई हो गया टू डूज, ठीक है, बोलते हैं टू डूज एपीआई बोल के आपको मिल जाएगा। तो ये एपीआई है ये। तो इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जेसन प्लेस होल्डर से एपीआई का लिंक बता सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैं 10 यूज़र का डेटा उठाया, राइट, 10 यूज़र का डेटा उठाया। तो अभी क्या करूँगा, देखिए थर्ड पार्टी पे जब कॉल होगा ना, तो इसमें रिक्वेस्ट बोल के जो है एक चीज़ है, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट ये जो है ये नेटिव प्लगइन है। सब जो देख रहे हैं आप वो सब नेटिव है, नेटिव पैकेज पाइथन का। तो यहाँ पर मैं क्या किया, डेटा लिया, डेटा में क्या किया, रिक्वेस्ट को लिया डॉट गेट, ये गेट मेथड है, ये गेट पोस्ट पुट डिलीट होता है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा लिंक में डाल दिया, राइट। तो इसमें मैं क्या किया, प्रिंट किया, तो मेरा क्या हो गया, रिस्पॉन्स में डेटा आया 200। तो इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेसन को लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू जेसन डेटा टू में हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट जेसन जेसन में करेंगे। तो यहाँ पर करने के बाद क्या होगा, जेसन डेटा का हम लोग आ गया हम लोग का डेटा। तो इसको बोलते हैं एपीआई कॉलिंग। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को कैसे हम लोग यूज मतलब कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कैसे इंटरफेस कर सकते हैं एक के साथ एक। मतलब ये मेरा पाइथन का एप्लीकेशन है, ये चल रहा है पीएचपी में, ये डेटा फ्लो कर रहा है पीएचपी के थ्रू, ये सर्वर में, कुछ एक सर्वर में है। तो उससे हम लोग क्या करें, हम लोग को मान लीजिए डेटा हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करें,
कि हम लोग ये डेटा को जो है कॉल करा के इसको डायरेक्टली जेसन में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा फेच कर रहे हैं। अभी मान लीजिए इसको मैं कोई भी CSV जेसन में ऐसे ही पुट कर सकता हूँ, कोई भी हम लोग डेटा फ्रेम इससे बना सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि एनालिटिक्स के लिए भी होता है, नॉर्मल यूज भी होता है। जैसे कि हम लोग DF डेटा कर दिए, तो हम लोग pg डॉट डेटा फ्रेम करके हम लोग क्या किया, इसको डेटा फ्रेम में घुसा दिए जेसन डेटा को। तो ये मेरा क्या होगा, DF डेटा जो है देखिए आ गया हम लोग का डेटा पूरा। तो ये हो गया इस यहाँ पर, ये एक दूसरा सर्वर, इसको हम लोग कॉल किए। हम लोग ऐसा नहीं है कि पुराना टाइम में क्या होता था, कैसे API नहीं था तो उसमें क्या होता था, एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेप्ट करना पड़ता था। यहाँ पर अभी रियल टाइम काम होता है, तो रियल टाइम में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली API कॉल करा के काम कर देते हैं। जब इसमें API में चेंज होगा तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। ये शेड्यूलर मेंटर करता है। तो ये सब इसके भी बाद एडवांस पोर्शन है, ये सब बेसिक पोर्शन है, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, तो सबको मतलब ठीक ठाक मालूम चल रहा है? तो मेरे को कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं, प्रॉब्लम होने से बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई एक चीज़ प्रॉब्लम। हेलो, हेलो सर। हाँ, तुम लोग का सब मालूम चल रहा है ना ठीक ठाक? हाँ सर। ओके, तो ऐसे करके हम लोग करते हैं, पूरा डेटा को हम लोग इसी हिसाब से जो है रेडी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसा हुआ, उसको क्या किए, ऐसे करके मतलब हम लोग को डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं, सब कुछ ही कर सकते हैं जो जो हम लोग को चाहिए जैसे, ठीक है। सॉरी, इसको रिवर्स नहीं होगा, एक लिस्ट में घुसाना पड़ेगा। ये हो गया, इसको एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट टू इक्वल टू ये हो गया, इसको पेस्ट किया, लिस्ट टू ये आ गया। तो सॉरी, इसको ना एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेवल में तो ब्लैंक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट टू ब्लैंक। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लिस्ट टू इक्वल टू आई थिंक ये भी लिस्ट नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं, ओ सॉरी, ऐसे करते हैं, लिस्ट में आ गया। ओके, तो अभी देखते हैं, लिस्ट टू डॉट और रिवर्स, अभी लिस्ट टू हुआ। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे, मैं क्या किया कि जो मेरा डेटा आ रहा था उसको मैं चेंज कर दिया। अभी इसमें से हम लोग एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, जो जो एलिमेंट हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। यह हो गया, तो ऐसे करके पूरा चीज़ को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, पूरा डेटा को जो है तोड़ मरोड़ के उसका चेंज करके। ये मान लीजिए ये सब ईमेल आ रहा है, तो इसमें मान लीजिए मैं ईमेल ले लेता हूँ यहाँ पर ईमेल, तो इसमें जो है इसमें आ गया, जो जो ईमेल है सबका आ गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको रिवर्स नहीं करती, इस पर फॉर लूप घुमाता हूँ, एक्स लिस्ट टू प्रिंट एक्स। तो ये में क्या हो गया, एक पूरा सीरियल जो है लिस्ट आ गया। तो इसमें से मान लीजिए इसको एलिमेंट में एक चीज़ मुझे घुसाना है, जो है कि हम लोग ईमेल आईडी घुसाना है, इसको जो है कॉन्टेक्ट करने के बाद। तो हम लोग का क्या है, ईमेल आईडी ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
अपकमिंग जो डेटा आ रहा है, मतलब सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग का डीबी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग पूरा चीज जो है हर एक लैंग्वेज में करते कंपलसरी है, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन, डेटा हैंडलिंग पूरा सर्वर साइड का ही काम है। क्लाइंट साइड भी करता है, कहीं पे मतलब कहीं पे उसको जो जो रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से क्लाइंट साइड का काम करता है। तो किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नो सर। हेलो ओके, आई थिंक Somogda. Hello. Yes, sir. Somogda. Okay, I will send the whole code. Okay, in the group. I think plus one documents. Okay. Mm-hmm. Okay. आई थिंक आज यहीं तक, ठीक है, यहीं तक करते हैं, फिर बाकी दूसरे दिन होगा। या पहले तो बेसिक सब क्लियर आप लोग क्लियर कर लो कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ये सब चीज़ आप करने के बाद उसके बाद हम लोग फिर बैठते हैं एडवांस पोर्शन में, जो नेक्स्ट लेवल में हम लोग प्लानिंग करेंगे, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग। ओके सर। आई थिंक फाइल शेयर का ऑप्शन कहाँ पर है यहाँ पर? फाइल शेयर का ऑप्शन यहाँ पर है, मीट में है, गूगल मीट में। सर शायद चैट में आप फाइल शेयर कर सकते हैं। नहीं, चैट में नहीं हो रहा है। चैट में यहाँ पर जो दिखाएगा यहाँ पर मैसेज सेंड करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, चैट में तो नहीं होगा। फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाट्सएप में ही कर देता हूँ फाइल अपलोड, ठीक है। right. documents मैं 2 जगह में ही कर देता हूँ, सॉरी। इसको आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें आपका पूरा दिया हुआ है। कैसे, मतलब जो कोड है पूरा दिया हुआ है। और किसी का दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ में आई थिंक सभी बीटेक बीसीए मतलब सब कंप्यूटर का बैकग्राउंड में है, अच्छा मतलब है तो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई भी जगह में और साइंस होना चाहिए। मैंने साइंस होने से कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा, वो ईसी हो गया, ई हो गया, सीई हो गया, मैकेनिकल हो गया। ठीक है, तो फिर आज इतना तक ही। मैं एक बार बात कर लेता हूँ सोमो खुदा से।
ठीक है, तो फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बात कीजिए। हेलो। ओके सर। हाँ, ओके बाय। Okay, sir. टेक केयर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Hi everyone. यार एक बात बताओ, किस किस का ये पहला पाइथन का सेशन रहा होगा अब तक का? Yes, yes. हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ किस किस का ये पहला पाइथन का सेशन रहा होगा अब तक का? हाँ भाई, फर्स्ट सेशन था आज। भाई मेरा तो ऐसे थोड़ा उड़ रहा था। समझ में आया पूरा क्लियर क्लियर? हाँ मतलब भाई बेसिक आइडिया थी तो आ जाएगा। मुझे लगा मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा। थोड़ा कहाँ से हो आप भाई? हम्म। कहाँ से हो आप प्रॉपर? यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके। सर को आप हो बुलाओ क्या यार। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे? हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या आप? शायद हूँ तो यार, टीम 2 के ग्रुप में हूँ। हमारा टीम 3 है शायद। हाँ इसमें शायद 2 टीम मर्ज है जूम सेशन में। और तो लीव करें या सर का इंतजार करें? समझ नहीं आ रहा है कुछ। हम्म। वेट कर दे, सर आएंगे शायद।
Hello guys, I'm sorry, I was in a call. So the documents which you have posted in the group,